He was on the faculty of the honors program in Ayurveda at Thames Valley University, London, and is the author of two comprehensive books of Ayurvedic medicine and Secrets of Ayurveda. Vaidya Verma consults on a number of Ayurvedic treatments, diet, and lifestyle. He treated till time more than 15,000 patients related to chronic elements like ulcerative colitis, hepatitis C, rheumatoid arthritis, bronchial asthma, and male infertility. And list goes long and long. His research into herbal medicines and food supplements had led to the development of a number of products available in Western market. Vaidya Verma's method of treatment has been featured in many TV programs also. A lot of newspapers and periodicals continue to carry review of his work. So warm welcome once again on the platform of Vedayu Online. Sir, I have many questions now. Reading after reading your biography, हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग मीन्स आप कनाडा में कैसे प्रैक्टिस करते हो वहां पे मीन्स एक आयुर्वेदिक वैद्य एज वेल एज प्रैक्टिसिंग इन इंडिया सो वी हैव अ क्वेश्चंस अबाउट इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा कि कनाडा में क्या आप हर्बल प्रैक्टिस करते हो या फिर रसकल्प भी इस्तेमाल हम वहां पे कर सकते हैं. No, rust preparations are not allowed in Canada. Even the rust preparations mean the medicines which contain heavy metals like mercury, lead, arsenic, or cadmium. You can't export it from India. There's a law. So no country other than India can use metals in the medicines. For approval of those medicines, you require FDA approval. However, arsenic, which is banned in herbal medicines, is used as medicine in allopathic medicine, but it is approved by the respective governments like US FDA, Health Canada, all this. Arsenic dioxide is used in allopathic medicine as injection for leukemia. It's a drug of choice for leukemia. People are using it. But it's a drug and has been properly manufactured and properly approved by the government of US and government of Canada. If anybody can use heavy metals provided they are properly researched and approved by the respective governments. But in we are using Ayurvedic medicines under cover of herbal medicines, so we can't use any metal in the herbal medicines. ओके सर, दिस इंफॉर्मेशन विल बी डेफिनेटली हेल्प आयुर्वेदिक वैद्यास बिकॉज अगर आज का हमारा लेक्चर जो है जनरल पब्लिक के लिए है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे वैद्यास ही है सुनने वाले आज के लिए भी. सो आज का टॉपिक जो है हमारा रूमेटोइड आर्थराइटिस, उसके तरफ जाते हैं. सर, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और ये रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे आर्थराइटिस के टाइप है. तो आज जो हम रूमेटोइड आर्थराइटिस देखने वाले हैं उसके बारे में आयुर्वेदा में स्पेशली कुछ लिखा है या फिर कुछ कहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमारे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया है. मैं लेट मी क्लैरिफाई, दीज ऑल आर्थराइटिस जो है ये सारे अलग अलग होते हैं. वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देयर आर ओवर 100 डिजीजेस जिनमें जोड़ों में दर्द पाया जाता है. आर्थराइटिस का जो टेक्निकली इसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि जोड़ों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर पाई जाने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से जो दर्द होता है उसे आर्थराइटिस कहते हैं. और तो आर्थराइटिस बहुत टाइप्स इसकी होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन टाइप, osteoarthritis, gouty arthritis, reactive arthritis, septic arthritis, psoriatic arthritis, colitic arthritis, बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं. तो उसका डायग्नोसिस डॉक्टर ही कर पाते हैं. और पेशेंट की कंप्लेंट तो सिर्फ यही होती है कि उनके जोड़ों में दर्द है, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक आर्थराइटिस है उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, उनके क्लिनिकल फीचर्स अलग होते हैं. तो ये मैं आने वाले दिनों में हम कुछ और भी वेबिनार्स करेंगे. अगले हफ्ते मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा स्क्रीन पे आपने शो किया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेट मी,
Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which causes inflammation in joints and resulting in deformity and immobility, especially in fingers, wrist, feet, and ankles. The cardinal symptom of rheumatoid arthritis is morning stiffness greater than 1 hour duration. तो जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली हाथों की उंगलियों से दर्द शुरू होता है, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है और स्टिफनेस होती है. पेशेंट जब हमारे पास आते हैं उनकी मेन कंप्लेंट ये होती है कि सुबह उठ के उनकी मुट्ठियां बंद नहीं होती हैं. ऑन एग्जामिनेशन जब हम उनकी उंगलियों को देखते हैं, देयर इज ए स्वेलिंग ऑन द जॉइंट्स, और उसके अलावा जब उस जॉइंट को हम दबाते हैं तो उसमें दर्द होता है जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं. इसके अलावा पेशेंट्स को हल्का बुखार रहता है. समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन फैटीग, फीवर, वेट लॉस, और फिर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर पेशेंट्स को टाइमली ट्रीट ना किया जाए. कई बार पेशेंट्स के लंग्स पे भी इफेक्ट आ जाता है जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं. सो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है प्राइमरीली ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है. ऑटो इम्यून डिजीज में बेसिकली पेशेंट्स का जो ब्लड होता है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट. जैसे ये पिक्चर में आप देखिए, ये दो बोन्स और यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप कर जाती हैं. दोज एंटीबॉडीज दे स्टार्ट causing inflammation in the synovial membrane. Finally वो inflammation जो है it ends up into damage of synovial membrane and which ends up into deformities. तो it's a autoimmune disease. ओके सर, लेकिन सर ये एंटीबॉडीज बनती क्यों है? ये $1 million क्वेश्चन है. ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम आयुर्वेदिक एंगल से बताएंगे आगे चल के कि एंटीबॉडीज कैसे हो सकता है. हमारे जो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स हैं, आयुर्वेदिक जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है ग्रंथों में, उसमें इसका जिक्र आता है. आई विल लेट यू नो. और वो एक रीजन भी हो सकता है जब हम आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन बताएंगे. अभी मैं आपको सिर्फ जो मॉडर्न साइंस रोमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे देखती है या इसको कैसे समझती है, सिर्फ वो बता रहा हूँ. तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है. तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट्स होते हैं, इसमें जब इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है, सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री होती है. जैसे मैंने कहा कि कार्डिनल सिम्टम जो इसका है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 hour. पेशेंट को 1 घंटे से ज्यादा स्टिफनेस रहती है. मॉर्निंग स्टिफनेस 2 घंटे से ज्यादा. इवन स्टिफनेस इज सीन आफ्टर पीरियड ऑफ रेस्ट. पेशेंट जैसे रूमेटॉइड के पेशेंट है, अगर वो 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं, जब वो उठते हैं तो उनकी बॉडी में स्टिफनेस होती है. उसके अलावा जब उनके जॉइंट्स को हम दबा करके देखते हैं तो उसमें पेन होता है जिसे हम टेंडरनेस कहते हैं. समटाइम्स जॉइंट्स होते हैं उसको टच से पता लगता है वो वार्म भी हैं, सोलन होते हैं जॉइंट्स. पेशेंट्स को ये इस तरह की हिस्ट्री होती है. पेशेंट्स के ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं. उनको कई बार हल्का बुखार होता है, पेशेंट्स का वेट लॉस भी हो जाता है और उनको फैटीग रहती है. और रोमेटॉइड के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन में कई बार हमें पेशेंट्स में अलर डेविएशन मिलती है. पेशेंट की जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर, ये बाहर को मुड़ी होती है और जो उसके जो कोहनी होती है वो अंदर को हो जाती है, जिसे हम जेड डिफॉर्मिटी कहते हैं. और इसके अलावा पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं. जो स्क्रीन पे ब्लड टेस्ट आ रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन. जनरली रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उनका ESR रेज्ड होता है. रोमेटॉइड फैक्टर कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार पॉजिटिव नहीं भी होता. लेकिन एक एंटी-CCP टेस्ट होता है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे हम अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको डेफिनेट माना जाता है कि पेशेंट को रोमेटॉइड आर्थराइटिस ही है.
और पेशेंट का कई बार CRP बढ़ा होता है, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है। जब भी CRP बढ़ता है, इट इंडिकेट्स कि पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। ANA एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये भी पॉजिटिव पाई जाती हैं। सो ये सारे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली इसका डायग्नोसिस बनाने का तरीका है। और कई बार पेशेंट का जब अफेक्टेड जॉइंट का एक्सरे किया जाता है तो उसमें पेशेंट्स के जॉइंट्स में इरोजन पाया जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक मेथड है इसका डायग्नोसिस करने का। और इसके पेशेंट की हिस्ट्री के बाद डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के बाद पेशेंट्स का कई बार, जैसे अगर हम डिजीज की प्रोग्रेशन देखते हैं, शुरू में तो पेशेंट्स को पेन, स्टिफनेस वगैरह इतने ही सिम्टम होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन और हल्का बुखार, इस तरह के सिम्टम। लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है तो मॉडरेट सिम्टम आ जाते हैं, काफी विजिबल स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्पिंडल्स देखने को मिलते हैं फिंगर्स में, एंड फाइनली लेट स्टेज में पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, हाथ टेढ़े हो जाते हैं। विच एवर ज्वाइंट इज अफेक्टेड, उस ज्वाइंट में कई बार डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। दिस इज हाउ दिस डिजीज प्रोग्रेसेस। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथिक साइड कि मॉडर्न साइंस में रोमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे लिया जाता है। तो जब भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको एजुकेट करते हैं अबाउट द डिजीज, उनको कई बार एक्सरसाइज, रेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, और उनको कई बार फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भेज देते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को पेन रिलीव करने के लिए NSAIDs दिए जाते हैं, जिसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। और कई बार पेशेंट्स की डिजीज इतनी ज्यादा होती है कि उनको मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स पे डाल देते हैं। और इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के अलावा मॉडर्न साइंस में पेशेंट्स को डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह, HCQOS, इस तरह की दवाइयां जो होती हैं वो दी जाती हैं। और इसके अलावा पेशेंट्स को कई बार इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट बहुत कॉमनली यूज होती है एलोपैथिक साइड में। और आजकल कुछ नई मेडिसिन आ गई हैं जिनको हम बायोलॉजिकल मेडिसिन कहते हैं, जैसे इन्फ्लेक्सीमैब वगैरह। ये इंजेक्शंस होते हैं, रेमिकेड के नाम से इंजेक्शन आता है, ये बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं। ये भी आजकल रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली दी जाती हैं। ये दीज आर द एलोपैथिक मेडिसिन्स। लेकिन हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक व्यू ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, तो मैं उस पे आता हूं, क्योंकि एलोपैथिक साइड बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं शुरू में। हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास पेशेंट तब आते हैं जब एलोपैथिक दवाइयों से उनको आराम नहीं मिलता। तो अगर हम देखें, why do patients want to take Ayurvedic treatment of rheumatoid arthritis? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें they are dissatisfied from the results of allopathic drugs, because जब भी पेशेंट एलोपैथिक दवाइयों को बंद करते हैं तो डिजीज दोबारा होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंट्स, अगर रोमेटॉइड के पेशेंट जो भी मेरे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, उनको पता होगा कि वो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, सालों साल अपनी NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या स्टेरॉइड्स या मीथोट्रेक्सेट या बायोलॉजिकल मेडिसिन लेते जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई परमानेंट आराम नहीं आ रहा। जैसे वो दवाई छोड़ते हैं, डिजीज द्वारा रिलैप्स हो जाती है। और एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स एवरीबॉडी नोज कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। अगर पेशेंट स्टीरॉइड ले रहे हैं, स्टीरॉइड लेने से उनकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे ही जो स्टीरॉइड्स जैसी दवाइयां हैं, इनसे अगर इम्यूनिटी लो हो रही है तो डिजीज उतना ही एग्रेवेटेड होता है। तो इसी तरह जो बायोलॉजिकल मेडिसिन हैं वो भी हैजर्ड फ्री नहीं है, दे आल्सो हैव वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स। और मोरओवर जो बायोलॉजिकल मेडिसिन हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एक इंजेक्शन जो है
एक एक ट्रीटमेंट कॉस्ट जो 35-40 हजार रुपए का ट्रीटमेंट एक बार का ट्रीटमेंट कॉस्ट करता है, और पेशेंट को सारी लाइफ ये दवाइयां लेनी पड़ती हैं. दैट इज द रीजन पीपल आर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन इन आयुर्वेदा. तो लोग आयुर्वेदा में आना चाहते हैं. तो आयुर्वेदा में हम लोग इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में आज मुख्य चर्चा होगी. तो मैं पहले ये जानकारी दे दूं कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ये एक रेगुलेटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में. हाउएवर बहुत सारी कंट्रीज में अब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स चले गए हैं. अमेरिका में बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, कनाडा में है, यूरोप में बहुत हैं, लंदन में मैं आई टॉट इन लंदन इन थेम्स वैली यूनिवर्सिटी. वहाँ मैंने थेम्स वैली यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आयुर्वेदा का कोर्स था. आई टॉट देयर फॉर 5 years. मैं इंडिया से जाया करता था. तो लेट मी एक्सप्लेन आयुर्वेदा है क्या. आयुर्वेदा बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ अथर्ववेद. जब धरती पे लाइफ शुरू हुई थी तो 4 वेद रचे गए थे. वेद क्या है? वेदास आर बुक्स ऑफ नॉलेज. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हुए हैं. तो अथर्ववेद का एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसे हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं. तो हमारा जीवन कैसे जीना, हमें कैसे जीना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान है वेदों में, पूरी नॉलेज है. अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए, इस सारी चीज का ज्ञान वेदों में है, सारी चीज का ज्ञान आयुर्वेद में है. और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे उसको हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसका सारा ज्ञान वेदों में है. और ये जो आयुर्वेद है या जो वेद हैं, ये 5000 साल पहले डॉक्यूमेंटेड हुए थे इंडिया में. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आयुर्वेदा में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं है. अरे भाई, वेद तो 5000 साल पहले लिखे गए हैं और अभी कॉपीज अवेलेबल हैं. और बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने वेदों को ले जा करके अपने अपने कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लाइब्रेरीज में रखा हुआ है. अभी जर्मन में आप जाइए, जर्मनी में उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट करके वेदों को रखा हुआ है. तो इट्स ए डॉक्यूमेंटेड साइंस. इसमें पूरे एविडेंस है, एविडेंस के बाद ही डॉक्यूमेंटेशन हुआ है. तो आयुर्वेदा इज ए साइंस विच इज आयुर्वेदा इज ए रेगुलेटेड सिस्टम विच इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम. हमारे इंडिया में 500 से ऊपर आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, जिसमें BAMS का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. और उसके बाद 3 साल का MD का कोर्स होता है, और उसके बाद 3 साल का PhD का कोर्स होता है. इट्स ए प्रॉपर रेगुलेटेड मेडिकल सिस्टम इन इंडिया. तो Yes, sir. Thank you for the कीपिंग ऑन आयुर्वेदा. हम और इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा में क्या ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में कुछ कहा है, या फिर स्पेसिफिक, जैसे आपने एलोपैथी की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी बताई, साइंस सिम्टम्स बताए, वैसे आयुर्वेदा में भी ऐसे कुछ लिखा गया है, कहा गया है? जी हाँ, आयुर्वेदा में इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम लोग आम बात के नाम से जानते हैं. मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि आयुर्वेद में जो शरीर को देखा गया है, जैसे मॉडर्न साइंस में तो शरीर को हम देखते हैं कि बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, हार्ट है, ऑर्गन्स हैं. ये मॉडर्न डिस्क्रिप्शन है. लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि जो शरीर होता है, ये पंच भौतिक होता है. ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है. All solids are under earth, all liquids are under water, all heat or temperature is covered under fire, and all movements are covered under air, and all hollow spaces are covered under space और आकाश. So पंच महाभूत का शरीर बना होता है, और उसमें 3 तरह के दोष होते हैं. मैं दोष के बारे में भी बताऊंगा. दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं, और इसमें आत्मा, मन और बुद्धि होती है. ऐसे ये आयुर्वेदिक रचना बनी होती है शरीर की. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोष, कि दोष क्या होते हैं. बहुत सारे लोग आजकल दोषा वेस्ट में करते रहते हैं.
अगर हम पूछते हैं उनको कि दोष होते क्या है, वो समझ नहीं पाते। वो कहते हैं जी दोषा कोई कहता है हमारा आई एम वाता, आई एम पिता, वो शायद वो अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं। लेकिन क्लैरिफाइड टेक्निकली दोष जो होते हैं, दोष हम कहते किसे हैं, दोष की डेफिनेशन या दोष को हम अगर सिंप्लीफाइड वे में जानना चाहें तो दोषाज आर 3 बायो एनर्जीज but not the substances derived from 5 elements, Panch Mahabhut, which are responsible for all physiological and pathological processes in the body. When these energies are imbalanced, they cause disease in the body. तो दोष जो होते हैं ये पंच महाभूतों से ड्राइव होते हैं। जैसे पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे ईथर, जिसे स्पेस कहते हैं हम, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। जब दो एलिमेंट कोलाइड करते हैं एक एनर्जी पैदा होती है। जैसे स्पेस एंड एयर कोलाइड करेंगे तो एक एनर्जी पैदा होगी, उसी एनर्जी को हम वात कहते हैं। और जब फायर एंड वाटर आपस में कोलाइड करेंगे तो एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम पित्त कहते हैं। और वाटर और अर्थ जब कोलाइड करते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम कफ कहते हैं। सो बेसिकली ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जिसे हम दोष कहते हैं। ये 3 एनर्जीज हैं। दोष इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये कम और ज्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में डिजीज पैदा कर देते हैं। लेकिन ये 3 एनर्जीज हैं। तो इसको अगर और अंडरस्टैंड करना हो, आप ये देखिए कि हरिकेन, जो एक आंधी आती है, हरिकेन आता है, तो उसमें उसका कंपोजिशन क्या है? हरिकेन इज कंपोज्ड ऑफ एयर एंड स्पेस। तो वो एक एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल है। अगर वात एनर्जी को हमने अंडरस्टैंड करना है तो आप एक हरिकेन को अंडरस्टैंड करिए, आप आंधी को, तूफान को अंडरस्टैंड करिए। इसके गुण वात के वैसे ही होते हैं जैसे हरिकेन के गुण है। एकदम उसमें मूवमेंट होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, बहुत सारी रफ्तार होगी। अनकंट्रोल्ड अगर रफ्तार होती है तो डिस्ट्रक्शन करती है। ऐसे ही अगर पित्त को अंडरस्टैंड करना है तो हमारे पास एक एग्जांपल है स्टीम की। स्टीम एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ हम स्टीम इंजन रन करते हैं। तो स्टीम को अंडरस्टैंड अगर हम करते हैं, स्टीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होती है। इसको ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि आप अगर स्टीम को अंडरस्टैंड करें, ये हूबहू इसके वही गुण होते हैं जो पित्त दोष के आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं। और इसी तरह अगर कफ एनर्जी है, कफ एनर्जी को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप कफ एनर्जी को अंडरस्टैंड करें तो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल की तरफ देखें। इसमें सैंड और वाटर का कॉम्बिनेशन, यानी वाटर और अर्थ का कॉम्बिनेशन, इसमें कोहेजन एनर्जी होती है। ये एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। सो 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। अगर कफ एनर्जी, कफ का मतलब कोई बलगम नहीं है, कफ का मतलब कोई खांसी नहीं है, कफ एक एनर्जी का नाम है। आगे ये जो 3 बायो एनर्जीज हैं, इनकी आगे 5 सब टाइप्स होती हैं। वात 5 प्रकार की होती है, पित्त 5 प्रकार की होती है, कफ 5 प्रकार की होती है। ये आगे चल के हम बीच बीच में बताते रहेंगे। लेकिन आज इतना ही अंडरस्टैंड करें कि ये जो दोष होते हैं प्राइमरीली ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जो हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। अगर ये बॉडी में एनर्जीज सम रहती हैं, बैलेंस रहती हैं, तो व्हेन दीज ऑल बायो एनर्जीज आर बैलेंस्ड, दिस कंडीशन इज कंड्यूसिव टू वेलबीइंग, हेल्थ और वेलनेस। ये हेल्थ का साइन है इफ दे आर बैलेंस्ड। लेकिन अगर ये एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, यानी अगर किसी में वात बढ़ गया, वात एनर्जी बढ़ गई, तो वात रोग हो जाते हैं। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं। 80 टाइप्स ऑफ वाता डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड। और इसी तरह पित्त अगर बढ़ जाए तो पित्त रोग हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाती हैं। आयुर्वेद में 40 तरह के पित्त रोग बताए गए हैं। और इसी तरह अगर कफ बढ़ जाए, कफ एनर्जी जिसको मैंने कहा कि कोहेसिव एनर्जी, जिसमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बढ़ती है, जिसमें पेशेंट का एनाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है, बॉडी बढ़ती चली जाती है, टिश्यूज बढ़ते चले जाते हैं,
जैसे पेशेंट को वेट गेन हो जाए, पेशेंट के ट्यूमर्स बनने लगे, ये सब कुछ जो होता है कफ डिसऑर्डर्स होते हैं। ये 20 प्रकार के कफ रोग आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए गए हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने डिस्क्रिप्शन बताई है। तो मैं अब आम वात पे आता हूं, जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है, आम वात। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मेजॉरिटी स्कॉलर्स ने आम वात के साथ कंपेयर किया या कोरिलेट किया है। आम वात को इसकी संस्कृत में डेफिनेशन यही है, आमम च वातम आम वातम। आम वाता unites to form Am Vata. Ama and Vata unites to form Am Vata. So आम वात को जानने के लिए पहले ये जाने हम कि आम जो है ये क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ आम एंड अग्नि, आम क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डीप में स्टडी करना है तो उसको पहले आम को समझना पड़ेगा। आम, इसका टेक्निकली आमा इज ए संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स uncooked material. In Ayurvedic classics, ama is described as a product of defective metabolism. It is formed at level of Jatragni, Bhutagni and Dhatavagni. So let me explain. आयुर्वेदा में अग्नि का एक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है। एक तो जाठ अग्नि होती है, विच इज जो जिसका स्थान होता है स्टमक और ड्यूडिनम। जाठ अग्नि इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्टमक एंड ड्यूडिनम। सेकंड है भूत अग्नि। भूत अग्नि मीन्स जो पंच महाभूत हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 तरह की अग्नि बताई गई है। और फिर धातव अग्नि है। 7 टिश्यूज आयुर्वेदा में 7 बॉडी के टिश्यूज हैं, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये 7 टिश्यूज होते हैं। जो एक टिश्यू की कन्वर्जन जो होती है, जो जैसे रस धातु, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में अंदर खाने का रस बनता है। तो रस को पकाने के लिए एक अग्नि होती है जो रस से रक्त बनाती है। फिर रक्त से मांस बनता है, वो रक्त अग्नि मांस बनाती है। रक्त मांस अग्नि आगे मेद बनाती है, आगे मेद अग्नि। तो अग्नि को बेसिकली हम मॉडर्न एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, जो आजकल नए नए एंजाइम्स मॉडर्न साइंस से पता लग रहे हैं, आयुर्वेद में उन्हीं को अग्नि का नाम दिया गया है। लेकिन सिर्फ वो एक टर्मिनोलॉजी का फर्क है, बातें वही हैं। लेकिन आजकल जैसे बहुत सारे एंजाइम्स, नए एंजाइम्स निकल रहे हैं, तो साइंटिस्ट उनको अपना अपना नाम दे रहे हैं। जैसे हार्ट के आजकल बहुत सारे ट्रोपोनिन वगैरह, बहुत सारे नए नए एंजाइम्स निकल रहे हैं, पेप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को नोन है। लेकिन आयुर्वेद में उन्हीं एंजाइम्स को, उन्हीं हार्मोन्स को, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले द्रव्यों को अग्नि कहा गया है। तो अग्नि के अलग अलग लेवल होते हैं। तो अगर अग्नि मंद हो जाए जिस लेवल पे भी, वहां आम की उत्पत्ति होती है, वहां वो मटेरियल अनकुक्ड रहता है, तो आम उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें जैसे डॉक्टर श्रद्धा जी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं, तो बेसिकली जो अपक्व टिश्यू होते हैं, जो अनकुक्ड आहार है या अनकुक्ड टिश्यूज हैं, या जो टिश्यूज प्रॉपरली नहीं बनते हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, उन्हीं को हम एंटीजन कह सकते हैं। मैं आगे आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि अगर हम आम के लेवल्स देखें तो फॉर्मेशन ऑफ आमा जो होती है, एक तो डाइजेशन के लेवल पे हो सकता है। बिकॉज अगर जाठ अग्नि मंद है तो डाइजेशन के लेवल पे, बिकॉज अगर जाठ अग्नि मंद है तो रस जो बनता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो रस बनता है, अगर वो अपक्व रहता है तो वो आमाशय में, अगर लंबे समय के लिए आमाशय में आम रस अपक्व रहता है, तो उसी को हम अपक्व अनरस या आम रस बोलते हैं।
लेकिन अगर कोई टिश्यू के लेवल पे, धातव अग्नि के लेवल पे, अगर जो टिश्यूज अनफॉर्म्ड है या वो टिश्यूज प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, इमेच्योर रह गए हैं, इमेच्योर सेल्स बन रहे हैं, जैसे हम ल्यूकेमिया में देखते हैं, ल्यूकेमिया में जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो मेच्योर नहीं होते। बहुत सारे टिश्यूज हैं जो जब जब वो मेच्योर नहीं हो रहे तो दैट मीन्स वो अपक्व है, तो वो उसी को हम आम कहते हैं। वो ल्यूकेमिया को अगर हम देखेंगे तो वो बेसिकली रक्त अग्नि ने प्रॉपर रक्त को बनाया नहीं है, वो इमेच्योर सेल रह गए हैं। तो वो एक लेवल है जो आम उसमें बना, वो एट द लेवल ऑफ धातु अग्नि बना। और उसी तरह हमारे कई ग्रंथों में आम जो होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ आमा एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल लेवल। तो नेगेटिव थॉट्स इन द माइंड, जैसे एक्सेस लस्ट है, काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारे जो मन के दोष हैं, ये सारे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आम बनाने के लिए। अगर हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, कुछ रिसर्चर्स ने देखा है कि ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी है, ये भी रिपोर्ट हुआ है। ऑटो इम्यून के साथ साथ कई बार इसको ये भी देखा गया है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और हमने अपने क्लिनिक में भी देखा बहुत बार, बहुत सारे पेशेंट्स में, खास करके विमेन, खास करके फीमेल्स, उनमें जब मैंने देखा कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन जब आती है तो उनके अंदर एक स्टिफनेस आती है, उनके अंदर एक खिंचाव आता है, feeling of victimization which leads to which triggers autoimmune process or which leads to formation of antibodies। वो आगे चल के, क्योंकि हम तो आम की बात कर रहे हैं, तो आम माइंड के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देखा जाता है। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में ये कहा गया कि जो अग्नि होती है, तो अग्नि को सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि हम सिर्फ डाइजेस्टिव फायर की बात कर रहे हैं या जाट अग्नि की बात कर रहे हैं। अग्नि को हम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन तो जाट अग्नि को कह ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी अग्नि में आएंगे। एंड अग्नि गवर्न्स स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी, अग्नि गवर्न्स टिश्यू न्यूट्रिशन, अग्नि गवर्न्स ओजस, तेजस एंड प्राणा, अग्नि गवर्न्स स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन, ग्लो, अग्नि गवर्न्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, अग्नि गवर्न्स मेंटल क्लैरिटी, इंटेलिजेंस। ये सारा अग्नि का खेल है। तो अग्नि को समझना बहुत जरूरी है अगर किसी ने आयुर्वेद के एंगल से आमवाद को ट्रीट करना है। जब तक हम अग्नि को करेक्ट नहीं करेंगे तो आमवाद ठीक नहीं होगा। तो क्या हम इस आपको ऑटो इम्यून डिसीज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं? सर एक मिनट, बिफोर दैट अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है सर को तो प्लीज चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल दीजिए, और जो लास्ट के 10 मिनट्स रहेंगे तब हम आपके क्वेश्चन सर से पूछेंगे। थैंक यू सर, कंटिन्यू। जी, आम बात को जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी टिश्यू अपक्व रहता है, देखिए हर लेवल पे अग्नि टिश्यू को पकाती है। जैसे रस से रक्त बनता है, तो रस अग्नि जब रस पे काम कर, रस को ट्रांसफॉर्म कर रही है, देयर आर सर्टन एंजाइम, सर्टन हार्मोन्स, या पूरी एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है जो उसको कन्वर्ट करती है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनकी कहीं डेफिशिएंसी है या उसका कोई ओवर यूज हो रहा है, उससे अगर वो अपक्व बन रहा है टिश्यू, तो वो एक एंटीजन का काम करता है। अगर वो एंटीजन बॉडी में बन गया तो नेचुरल एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन होगा, उसी को हम ऑटो इम्यून कहते हैं। तो जो अनकुक्ड मटेरियल, नॉट ओनली फूड बट अनकुक्ड मटेरियल एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, वो भी एंटीजन का काम करता है। तो वो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज, आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत बढ़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज है, ल्यूपस ऑटो इम्यून है, वाइटिलिगो ऑटो इम्यून है, इसके अलावा
मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ होती है उसको लेकर के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो ये किस लेवल पे वो टिश्यू अपकव रहता है उसी को हम एंटीजन, वही एक एंटीजन का काम करता है, वही वो ऑटो इम्यून की प्रोसेस को ट्रिगर करता है। और इस पे बहुत सारी रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि ये एरिया अभी खाली पड़ा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि ऑटो इम्यून डिजीजेस का कॉज क्या है। लेकिन अगर हम सिर्फ आयुर्वेद में बताए गए जो आम दोष जो है, जो सामज व्याधियां होती हैं, जो आम के साथ व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, अगर हम इसी पे रिसर्च कर लें तो आई एम श्योर कि हम इस रहस्य को ढूंढ पाएंगे, हम इस सीक्रेट को ओपन कर पाएंगे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस का क्या कारण रहता है। क्योंकि इसमें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये देखा कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पेशेंट्स को रिलीफ देती हैं। वो भी उनका एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ऑटो इम्यून मार्क करने का उनका एक मेथड है। उसी तरह से हमारी जो आम नाशक दवाइयां होती हैं जो आम को खत्म करती हैं, जो आम रस की उत्पत्ति को खत्म करती हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जितने ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उसमें वो फायदा करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो उपशय होता है कि जो आम नाशक औषधियां होती हैं ये आम जन्य व्याधियों को दूर करती हैं, इसलिए इसको हम आम रोगों के नाम से जानते हैं। तो मैं आगे चलता हूं इसमें कि आयुर्वेदा में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कुछ रिसर्चेस अवेलेबल है? जी हाँ, रिसर्चेस पे मैं आता हूं। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि जैसे आम बात के सिम्टम आयुर्वेदा में भी उसी तरह के बताए गए हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं। जो आपने मैं पहले ये बता दूं रिसर्च से पहले कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है वो आयुर्वेदा में हम लोग 4 लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं। पहले एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है डिटॉक्स, जिसको हम संशोधन चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें पंचकर्मा को बहुत सारे लोग वेस्ट में जानते हैं कि पंचकर्म क्या होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बॉडी मसाज किया तेल के साथ, ऑयल के साथ, और स्वेदन कर दिया, हर्बल सोना दे दिया तो पंचकर्मा हो गया। मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो ऑयल मसाज एंड हर्बल स्टीम बाथ हम देते हैं, these are only पूर्व कर्मास, they are प्री प्रोसीजर एप्लीकेशंस। लेकिन 5 प्रोसीजर्स जो हैं वो अलग होते हैं। 5 प्रोसीजर क्या है, अगर हम चरक के अकॉर्डिंगली देखें तो वमन, जिसे हम थेरेपेटिक वॉमिटिंग कहते हैं, थेरेपेटिक वॉमिटिंग हम पेशेंट को कुछ पानी पिला के या कुछ द्रव्य पिला के उल्टी करवाती है, ये एक मेथड होता है डिटॉक्स करने का। सेकंड होता है विरेचन होता है लेग्जेटिव दवाइयों को दे करके, जिसमें हम लोग अरगवद, सेना वगैरह या त्रिफला वगैरह इस तरह की दवाइयों को देके हम पेट साफ करते हैं, वो विरेचन है। अनुवासन और स्थापन, एक डिकॉक्शन का अनीमा दिया जाता है और कुछ ऑयल का अनीमा दिया जाता है, अनुवासन बस्ती या स्थापन बस्ती। और उसके बाद फिर एक नस्या कर्म होता है जिसमें नाक से कुछ ऑयल डाले जाते हैं, नेजल इंसफ्लेशन की जाती है। तो ये 5 तरह के प्रोसीजर होते हैं जिससे बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है फिर हम डिटॉक्स करने के बाद पेशेंट्स को शमन औषधियां दी जाती हैं, जो कि स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं हर डिजीज के लिए। कोई ना कोई सिंगल हर्ब है या मल्टी हर्ब्स होती हैं प्रेपरेशंस, जिसमें हम चूरन, वटी, आसा, वरिष्ठ इस तरह की दवाइयां देते हैं, और कई हम घृत प्रेपरेशन देते हैं या आंवले प्रेपरेशन देते हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस होती हैं आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में,
जो कि अलग अलग फॉर्म में होती हैं, वो संशमन चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। और थर्ड, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइटरी रेजिमेंट, कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए, खाने में क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे कि एलोपैथिक साइंस में ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बहुत सारे आहार इस तरह के होते हैं जो कि डिजीज को बढ़ाते हैं। तो इसलिए पथ्य अपथ्य इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड फाइनली हम पेशेंट्स के लाइफ स्टाइल्स को भी रेगुलेट करते हैं। उनका विहार होता है, उनका उनका जो डेली डेली उसकी रूटीन होती है, उसको भी चेंज करने की एडवाइस दी जाती है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 4 कंपोनेंट्स रहते हैं। तो अगर हम आम बात का ट्रीटमेंट देखें तो उसमें जो सूत्र है आम बात के ट्रीटमेंट का, उसमें उन्होंने बता रखा है कि लंघन, फास्टिंग जो होती है, जब भी आम जन्य व्याधि होती है उसमें फास्टिंग बहुत हेल्प करती है। फिर उसमें स्वेदन, जिसे हम स्टीम स्टीम कहते हैं, सोना कहते हैं, सुडेशन कहते हैं, स्टीम बहुत फायदा करती है। फिर इसमें जो आम पाचन द्रव्य होते हैं, जैसे त्रिकटु है, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, ये हेल्प करता है। और इसमें दीपन औषधियां जो जो भूख को बढ़ाती हैं, ये भी आम को पचाने में हेल्प करती हैं। सो आम, पहले तो ये डायग्नोज करना पड़ता है कि आम की जो उत्पत्ति हो रही है वो किस लेवल पे है। अगर वो जाठरकनी लेवल पे है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म लेवल पे है, या आम की उत्पत्ति धातव अग्नि के लेवल पे है, ये सारे वैद्य जो होते हैं वही इसको डायग्नोज कर पाते हैं। तो मेरा आम लोगों से ये भी कहना है कि आप हमेशा यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड वैद्यों के पास ही जाएं, क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड नहीं है वो इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत सारे लोग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खास करके वेस्ट में आ रही है, लोग प्रॉपरली जो क्वालिफाइड नहीं है वो चिकित्सा के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। और इसके बाद वस्ती इसमें फायदा करती है। वस्ती आम में फायदा, पंचकर्म जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये फायदा करते हैं। तो अगर हम देखें कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो गोल रहता है वो ये रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, कि हम उनको एक तो सिम्टोमेटिक रिलीफ दें, सेकेंड उनके लॉन्ग टर्म रिमिशन हो, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक रिमिशन एंड एक्सेसरवेशन जैसी बीमारी है कि आती है चली जाती है। तो हम चाहते हैं, हम नॉर्मली टारगेट करते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले और उनकी जो डिसेबिलिटी ना हो, पेशेंट को उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज डेवलप ना हो और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। ये हमारे ट्रीटमेंट का गोल रहता है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की, जहां तक आपने श्रद्धा जी रिसर्च की बात की, तो आजकल पबमेड पे अगर आप जाएं, गूगल पे जाएं, बहुत सारी रिसर्च, आयुर्वेदिक रिसर्च रोमेटॉइड पे हो चुकी है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। पहले जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला ट्रीटमेंट का पार्ट होता है संशोधन कर्म। अगर हम संशोधन कर्म के बारे में देखें तो एक इंटरनेट पे ये पेपर अवेलेबल है, मैनेजमेंट ऑफ आर्म वात रोमेटॉइड आर्थराइटिस विद डाइट एंड विरेचन कर्म। विरेचन कर्म जो कि थेरापेटिक परगेशन होती है, हम पेशेंट को लेग्जेटिव दवाइयों का इस्तेमाल कराते हैं। इसका पूरा एक विधान होता है कि अगर हम शॉर्ट में भी लेग्जेटिव देना हो, कि पहले दिन हम पेशेंट का थोड़ा पेट खाली रखते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर बड़ा विरेचन कर्म नहीं भी करना, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल कुछ इस तरह के हैं कि लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट रहते हैं, तो आप फ्राइडे इवनिंग में अपना पेट खाली रखें, सैटरडे मॉर्निंग में आप लेग्जेटिव दवाइयों का इस्तेमाल करें और सारा दिन आप लिक्विड डाइट पे रहें, और संडे मॉर्निंग में हल्का ब्रेकफास्ट करें, और संडे लंच और डिनर पे जाके आप अपनी रेगुलर डाइट लें। तो ये एक पूरा 36 घंटे या 48 घंटे का एक टाइम होना चाहिए, जो कि मिनिमम टाइम होना चाहिए, तब इसे हम विरेचन कर्म का पार्ट मान सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद ग्रंथों में तो 14 दिन का विरेचन कर्म बताया गया है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, कम से कम इतना जरूर करें कि हम
48 घंटे या 36 घंटे का टाइम जरूर वेरिएशन को दें। सेकंड, एक रिसर्च पेपर और अवेलेबल है, क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ मात्रावस्ती एंड वातारी गूगल इन मैनेजमेंट ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सारे रिसर्च पेपर जो डिटॉक्स को लेके ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल हैं, जितने व्यूअर्स हैं वो नेट पे जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इसमें जो मैंने बताया था कि जो हमारी संशमन औषधियां होती हैं, तो संशमन औषधियों में इसमें जैसे एलोपैथिक साइड में दो तरह की ट्रीटमेंट मैंने जैसे पहले भी शुरू में बताया कि पेन मैनेजमेंट की जाती है एनएसएआईडी से, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इसके साथ एलोपैथिक डॉक्टर पेन को मैनेज करते हैं, क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पेन एंड स्वेलिंग ओवर जॉइंट्स, ये मेजर कंप्लेंट है। पेन के लिए वो एनएसएआईडीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए वो डीएमएआरडी, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें HCKOS वगैरह, गोल्ड इंजेक्शन, लिवेमिसोल, इस तरह की दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आजकल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आती हैं। तो जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां पोटेंट पेन किलर तो नहीं है, बट दे आर वेरी पोटेंट एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो इसको हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग से कंपेयर कर सकते हैं, उसमें बहुत फायदा करती हैं। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को एलोपैथिक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की बजाय मैं आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करवाता हूं, और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। हमने देखा है कि इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से पेशेंट का रूमेटॉइड फैक्टर कम होता है, उनका एंटीसीसीपी कम होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट्स के बहुत सारे पेशेंट्स का रूमेटॉइड फैक्टर तो नेगेटिव हो गया है। और मैंने ये भी देखा इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और अगर आप नेट पे देखें, बहुत सारे जो सिंगल हर्ब्स हैं जैसे बॉसवेलिया सेरेटा, इस पे प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसकी एनिमल स्टडीज में भी देखा गया है, इज वेरी इफेक्टिव। हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं बॉसवेलिया सेरेटा। जर्मनी में ये नंबर 1 मेडिसिन है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दी जाती है। अमेरिका, कनाडा, यूएस में और इधर यूरोप में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को बॉसवेलिया सेरेटा बहुत कॉमनली दिया जाता है। और एक रिसर्च पेपर नेट पे ये भी अवेलेबल है, अश्वगंधा पाउडर एंड सिद्ध मकरध्वज। मैं यहाँ बता दूं, सिद्ध मकरध्वज इज ओनली अलाउड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया सिद्ध मकरध्वज, क्योंकि ये एक रस प्रेपरेशन है, ये आउटसाइड इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। इंडिया में लॉ है कि if any medicine contains any rust preparation which is prepared from mercury, lead or arsenic, any Ayurvedic medicine which is prepared from mercury, lead, arsenic, it cannot be exported. But in India it is legal. सिद्ध मकरध्वज बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियों का आता है मार्केट में, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। और इसका रिसर्च पेपर ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, एंड इट हैज बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव। और इसके अलावा हमने देखा है करकुमिन, हल्दी जो होती है, ये बहुत पोटेंट एंटी रूमेटिक काम करती है। मैं डीएमएआरडी की बजाय अपनी ये प्रेपरेशन देना पसंद करता हूँ। और हमारा जो दिल्ली में सेंटर है, सुश्रुता आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर, उसमें हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। वो हमारे पेशेंट्स को जनरली इन्हीं दवाइयों के कॉम्बिनेशन देते हैं, जो कि बॉसवेलिया सेरेटा या अश्वगंधा या करकुमिन इनसे बने होते हैं। और पेशेंट्स को लगभग 1 साल के करीब दवाई खानी पड़ती है, और पेशेंट के जो रूमेटॉइड फैक्टर और पेशेंट्स का ESR तुरंत कम होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा नॉलेज, एक बहुत अच्छा की मैसेज मिला यहाँ पे कि आयुर्वेदा प्लेज अ मैसेज ग्रेट मेजर रोल इन द डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स. Yes. And again, I will ask some few more questions as I am getting more interest in this session.
sir, what the diet and what kind of lifestyle we have to accept in our life to cure this rheumatic arthritis? Actually, diet does not play a role in curing it, but आयुर्वेद के ग्रंथों में विरुद्ध आहार का बहुत डिस्क्रिप्शन आता है। वो कहते हैं कि अगर विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि अगर आप अपनी प्रकृति के अगेंस्ट जाके अपना आहार करते हैं, सपोज कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, अगर वो वात वर्धक आहार का इस्तेमाल करता है तो उसके बॉडी में वाता एनर्जी और बढ़ जाती है। जब मैं इंग्लैंड में था, एक पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की लेडी हमारे पास दवाई लेने के लिए वहां आई। उसकी प्रकृति भी वात थी और उसको अनफॉर्चुनेटली साथ में डायबिटीज थी, और एक जूनियर डॉक्टर ने उसको जामुन की गुठली का पाउडर दे दिया। उसको डायबिटीज एंड रूमेटॉइड बोथ थे, और जामुन की गुठली देने से वो उसका पेन इतना बढ़ गया, क्योंकि जामुन एक कषाय रस प्रधान द्रव्य है और उससे वात बढ़ती है। वो इतना रूक्ष था, उसकी स्किन ड्राई हो गई और उसको ठीक करने के लिए मैं 15-20 दिन लग गए। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन सी दवाई देनी है। हम जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वो पेशेंट की प्रकृति, वहाँ का देश काल, प्रकृति, पेशेंट का बल, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं आम लोगों को, जो हमारी जनरल पब्लिक इस एपिसोड को देख रही है, उनको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी प्रकृति के अगेंस्ट जाके कुछ आहार लेंगे या कुछ इस तरह के द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हर्बल भी हो, उसके भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए आप क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक वैद्यों के पास जाएं जो आपका इलाज कर पाए। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जो डाइट है, उसमें ये मेरी स्लाइड्स हैं, आप देखिए। इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में 4 होम रेमेडीज हैं जो आपके घर में ही है। जो जिंजर होता है, ये आम नाशक होता है। अगर किसी को इंडाइजेशन हो रही है, अगर आम की उत्पत्ति इवन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज हो रही है, जैसे मैंने कहा कि धातव अग्नि के लेवल पे अगर आपकी आम की उत्पत्ति हो रही है, तो जिंजर उसमें बहुत हेल्प करता है, गार्लिक उसमें बहुत हेल्प करता है, हल्दी उसमें बहुत हेल्प करती है, इवन केन पेपर, जो रेड पेपर है, लाल मिर्च जो होती है, ये भी आम नाशक होती है। इन 4 द्रव्यों का, इन 4 फूड एलिमेंट्स का, जो कि आपकी किचन में अवेलेबल है, अगर आप अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ले रहे हैं, तो साथ में इन द्रव्यों को आप अपने डाइट में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो रूमेटॉइड के पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, दे विल रियलाइज कि उनकी बॉडी में बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। और जैसे मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स वाता पैसिफाइंग डाइट, आप आजकल अपनी डाइट को गूगल पे जाके टाइप करें वाता डाइट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए। तो इस तरह के फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हैं। और रूमेटॉइड के पेशेंट्स को अपने सारे जॉइंट्स को हमेशा हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि रूमेटॉइड में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, वो आता है कि पेशेंट्स को डिफॉल्ट हो जाती हैं। तो पेशेंट्स अपने हाथों को हिलाएं, अपनी रिस्ट जॉइंट को हिलाते रहें, अपनी कोहनी को, अपने शोल्डर्स को हिलाएं, अपनी पूरी बॉडी को हिलाएं। तो जो रेंज मोशंस एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, या इवन सूर्य नमस्कार, ये योगा का जो सूर्य नमस्कार होता है, ये बहुत हेल्प करता है। और जैसा मैंने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कई बार हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी मानते हैं, क्योंकि अगर आम की उत्पत्ति एट द लेवल ऑफ माइंड हो रही है, तो नेचुरल है, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आम बढ़ रहा है, तो इट विल बी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। उसके लिए मेडिटेशन, कपालभाति, प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। हम कभी मैं आप यहाँ एक और जानकारी दे दूं कि योग का मतलब सिर्फ नाक द्वारा लंबे लंबे सांस लेना
या प्राणायाम करना, कपालभाति करना, ये योग नहीं है। योग को हम पूरा अष्टांग योग की एक पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे, जिससे हम बताएंगे कि यम क्या होता है। यम में जो ट्रूथफुलनेस और इसके अलावा नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, सेलिबेसी, और इसके बाद नॉन एकमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये सारा यम में आता है। नॉन एकमुलेशन ऑफ वेल्थ याद रखना, ये मैं जब आपके योग का एपिसोड करूंगा तो मैं आप बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जो योगी जितने टेलीविजन पे आते हैं ये नहीं बताते, वो सब एकमुलेशन ऑफ वेल्थ की बातें करते हैं। तो योग क्या होता है इसकी जानकारी भी हम अपने एपिसोड में देंगे इसी चैनल पर। और यम के बाद नियम, आसन। आसन तीसरी अवस्था, तीसरी स्टेज होती है योग की। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 स्टेप्स होते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम योग के एपिसोड में देंगे। और नेक्स्ट वीक मैं इसी समय संडे को 7 से 8 के बीच में ओस्टियोआर्थराइटिस पे बात करूंगा। सो ओस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर होता है, इसकी हम बात ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैं नेक्स्ट संडे इसी चैनल पर बात करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भगवत गीता में ज्ञान योग बोला गया है, भक्ति योग बोला गया है और कर्म योग बोला गया है। आज हमें लगता है तीनों योगों का दर्शन 1 घंटे में हो गया। सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे लिसनर्स से। ये RS झांझी सर जो है पंजाब से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विंटर में समटाइम्स हैंड फिंगर्स जॉइंट्स गेट स्वॉलन. Does it correlate with some type of arthritis and do you mention any treatment? देखिए, अगर वो ट्रांजिएंट होता है, अगर थोड़े समय के लिए स्वेलिंग रहती है तो उसको हम आर्थराइटिस नहीं कह सकते। बहुत सारी मस्कुलर पेन्स जो होती हैं, मस्कुलर पेन्स जो अपने आप अगर वो ठीक हो रही हैं तो उसमें ट्रीटमेंट कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर स्वेलिंग लंबे समय के लिए रह रही है, और खास करके रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, जैसे मैंने कहा, इसका कार्डिनल सिम्टम, इसका मेन फीचर होता है मॉर्निंग स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 आवर ड्यूरेशन। 1 घंटे से ज्यादा अगर स्टिफनेस और स्वेलिंग है, फिर उसको अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। अगर स्वेलिंग आ रही है, जा रही है और थोड़े समय के लिए आ रही है, वो कई बार कुछ इस तरह के फूड होते हैं सर्दियों में हम ले लेते हैं जो कि ट्रांजिएंट होते हैं। अगर स्वेलिंग ज्यादा आती है तो आप हल्दी का इस्तेमाल, दूध में 1 चम्मच हल्दी का घोल के अगर लेते रहें तो आपकी जो स्वेलिंग है कम हो जाएगी। ओके सर। सर, अंकित जी पूछ रहे हैं कि हैव अ बोथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, सो व्हाट इज द बैलेंस डाइट? देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों ऑटो इम्यून डिजीज हैं। कई बार ऑटो इम्यून डिजीज जब शुरू होते हैं तो इनकी पूरी फैमिली होती है। हमने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ऑटो इम्यून, जिनमें डायबिटीज, ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनमें कई बार दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज भी आ जाते हैं। कल ही मेरे पास एक लड़की आई, उसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस था और साथ में उसको हशीमोटो सिंड्रोम था, थायराइडाइटिस था। सो थायराइड की एक डिजीज होती है, वो भी ऑटो इम्यून होती है। तो ऑटो इम्यून, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों है। लेकिन वो अपना चेकअप कराएं। कई बार क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को कोलाइटिक आर्थराइटिस हो जाता है, तो आप उनको मेरा नंबर दे दें। मेरा जो, क्योंकि आजकल मैं अभी तो कनाडा में हूँ, हमारा दिल्ली में सेंटर है, तो दिल्ली में जो सेंटर है वहाँ का नंबर भी मैं शेयर कर लेता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। ये हमारा दिल्ली का सेंटर है, सुश्रुता आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर। यहाँ 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर दीपा और डॉक्टर अनुराधा यहाँ अवेलेबल रहती हैं। तो ये दिल्ली मधुबन में है और यहाँ के फ़ोन नंबर है 22050506 और मोबाइल नंबर है 9910672020। तो हमारी वेबसाइट है sushruta.com। तो आप दिल्ली सेंटर में भी ट्राई कर सकते हैं, या मेरा कनाडा का नंबर आप ले लीजिए अगर किसी ने मेरे से डायरेक्ट बात करनी है।
तो कनाडा के लिए आपको 0014168041500 ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें। अंकित जी, जैसे आपने कहा है, तो लेट मी अंडरस्टैंड कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस सेपरेटली डेवलप हुआ है और कोलाइटिस आपको सेपरेटली डेवलप हुआ है, तो मैं आपको फिर कोई ना कोई सोल्यूशन उसका जरूर बताऊंगा। यस सर। सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो काइंडली सर ने आप खुद का कांटेक्ट नंबर दिया है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सर से कनेक्ट कर दूंगी आपको। एंड हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर भी है, जो नेक्स्ट सेशंस में आपके साथ रहेंगे। सर ने आपको रिव्यू दिया है कि वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्रेट लेक्चर, एंड मेंशनिंग द हर्ब्स लाइक जिंजर, turmeric and pepper is the ACME of the information. So very relevant and critical info given by you. So thank you, sir, and very informative lecture. Now people are giving reviews. So kindly give your reviews to us on 8828220108 or else on vedayuonline.com. And thanks once again, sir, for giving information regarding rheumatoid arthritis. तो इसी नोट पे आज हम रुकते हैं और नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एट 7 PM 27 सितंबर को विथ न्यू टॉपिक विथ सेम गेस्ट डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा सर ऑन द टॉपिक ऑफ आयुर्वेदिक व्यू ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हम और सुनना तो चाहेंगे लेकिन वक्त परमिशन नहीं दे रहा है। No ओके, problem. थैंक यू you. वेरी मच एंड थैंक यू टू द लिसनर्स आल्सो। Thank you.